Welcome to this lecture on Location of Roots Theorem by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Shantanu. Good afternoon. So today we are going to do another important theorem from this section, which is location of roots theorem, or you can say intermediate value theorem. जो भी अब हम different forms करने वाले हैं, they are all some or form or the other of intermediate value theorem. जितने भी अब results करेंगे, they are all different forms of intermediate value theorem. ठीक है? So first theorem which is there in your syllabus is location of roots theorem. So let me just state the statement of this. Okay, so this is the location of roots theorem. So what does it say? That if I is any closed interval, f is a continuous function on I, and fa is less than 0, less than fp, or fa is greater than 0, greater than fb. So basically the function is changing its sign on the interval a to b. Okay, basically what does this mean? That the function is changing its sign. It is either it is going from positive to negative, or it is going from negative to positive. So at least once it is changing its sign on the interval ab. So अगर एक भी बार साइन चेंज करता है इंटरवल पे, तो then there exists a number c belonging to b such that the fc is 0. That means there is a root of the function in the interval ab. If the function is changing its sign on any interval, then there is a root of the function in that interval. क्योंकि अगर जैसे if you look at the graph of a function, okay. So suppose fa is positive, this is your a, this is your b. ठीक है? So we are given that fa is positive. So positive होगा तो इस ये x axis से ऊपर होगा, right? The value of the function, and fb is negative. So suppose b is here, then the function has to cross this line at least once, क्योंकि continuous है तो jump तो करके जा नहीं सकता वो. So it has to cross this line. So उसको यहाँ से कहीं से ऐसे करके जाना पड़ेगा, right? So it has to cross this line. So कहीं पे there will be a point c such that fc is equal to 0, right? Is it clear? जैसे अगर हम we assume that fa is greater than 0 and fb is less than 0, so at least once it is so इसको यहाँ पे कट करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए. It has to come here. और कंटिन्यूस है, it is continuous. कंटिन्यूस का मतलब there is no jump, और जंप नहीं है तो इसको इधर से आना पड़ेगा पूरे इस पे. और ये डोमेन हमारा इंटरवल है, डोमेन में भी कोई जंप नहीं है. समटाइम्स अगर डोमेन में जंप हो तो हम जंप ले सकते हैं फंक्शन का, जैसे हमने देखा कि जो हमारा वो वाला फंक्शन है, अगर हम ये इस पे डिफाइन करते हैं 0 1 यूनियन 2 पे, एक हमने फंक्शन देखा था ना. सो देयर इज अ जंप इन द डोमेन, सो इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स पे कर सकते हैं कंटिन्यूस. लेकिन यहाँ पे बिकॉज इट इज नॉट इट इज अ इंटरवल, तो ये भी पूरा जो है it should continuously go to this point, और इस point पे continuously जाने के लिए it has to cross this x-axis, और x-axis cross करेगा तो उस पे जो है value of the function will be 0. So that means it has a 0 in that interval. Is it clear? Yes, sir. देखो ये भी possibility हो सकती है. This can also be a possibility. So suppose this is your another. So again let us take fa to be positive. So this is your a and fb to be negative. This is your b. Again we are assuming fb to be negative, fa to be positive. So function इस तरह से भी चल सकता है, यूं नीचे से ऊपर. ठीक है? It has to, but somehow it has to come here. So then इस case में it is crossing this 3-4 times, right? In fact 5 times. So ऐसा भी हो सकता है, but at least once तो it will cross. It has to cross this line at least once. अगर ऊपर गया तो वापस नीचे आएगा. तो क्योंकि it is changing its sign, so जब भी इंटरवल में साइन चेंज होता है, that means the function or function is continuous. So that means it is cutting the x-axis at some point. So that point is called the root of the
फंक्शन। ठीक है, फाइन। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू प्रूव इट। सो इसको प्रूव करने का तरीका क्या करेंगे हम, जैसे इसमें हम बाइसेक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सो इसमें जो है वी यूज द बाइसेक्शन मेथड। there are two different proofs जो तुम्हारे syllabus में it is given to be bisection method. So suppose AB is interval and we are assuming FA is greater than 0 greater than FB. So इसमें क्या करेंगे, ठीक है, so this is positive and suppose this is negative. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, first we take the midpoint. So midpoint ले लेते हैं. So this is our, so this is a, this call it as A1, call it as B1. ठीक है, हमें क्या करना है, साइन चेंज रखना है हमेशा इंटरवल में। अब ये पॉइंट ले लिया, अब हमारे पास दो इंटरवल आ गए, एक ये वाला इंटरवल है, एक ये वाला इंटरवल है। सो वी चेक कि यहाँ पे साइन कौन सा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो व्हाट विच इंटरवल वी शुड कंसीडर, फिर हम ये वाला इंटरवल कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम अवर A2 एंड दिस विल बी अवर B2। ठीक है, so this will be our A2, this will be our B2, so then we consider this interval। अब इस इंटरवल में आ गए, अब दोबारा इसका मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, इसका मिड पॉइंट लेंगे। नाउ सपोज दिस इज नेगेटिव, सो अब इन दोनों में सेम साइन हो गया, सो वी विल नॉट कंसीडर दिस इंटरवल, वी विल कंसीडर दिस इंटरवल। ठीक है, इज इट फाइन? सो दिस विल बी अवर B3 एंड दिस विल बी अवर A3। फिर दोबारा इसका मिड पॉइंट लेंगे हम। सो ये मिड पॉइंट लिया, सपोज दिस कम्स आउट टू बी अगेन, दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, सो वी विल लीव दिस इंटरवल, वी विल कम आउट, वी विल कंसीडर दिस इंटरवल। ठीक है, अब इस इंटरवल को कंसीडर करेंगे तो दिस विल बी अवर B4 and this will still be A4। अब suppose this comes out to be positive, तो हम ये वाला इंटरवल कंसीडर करेंगे और इसमें फिर ये हमारा this will be your B5, ये B5 रहेगा and this will become, so ये जो पॉइंट आ रहा है this will become your A5। so इस तरह से हम जो है we will keep on taking the midpoint। so एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये after infinite number of steps what will happen, we will come at a point at which the value of the function will be 0। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं हम, इंटरवल के लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। देखो पहला हमारा इंटरवल था A1 minus B1 was A minus B minus sorry B1 minus A1 was B minus A। फिर नेक्स्ट स्टेप में B2 minus A2 क्या हुआ, हाफ ऑफ B minus A। फिर B3 minus A3 क्या हुआ, इसी का हाफ लिया था, तो 1/4 टाइम्स B minus A या 1/2 स्क्वायर कर दो, एंड B4 minus A4 2 cube B minus A। so इस तरह से we are continuing। so यहाँ पे क्या, so after so Bn minus An क्या हो जाएगा, 1/2n minus 1 times B minus A, right? every time we are decreasing the length of the interval to half, so ये आ जाएगा। so when you will take limit n tends to infinity, this Bn and An will be same। so वहां पे जो हमारे पास दो सीक्वेंस आ गई An and Bn, so the both will converge to at a single point, say C। दोनों सेम पे ही कन्वर्ज करेगा क्योंकि Bn minus An is converging to 0, so both will converge to C। so ये जो C पॉइंट होगा इस पे f of C has to be 0, ये हम प्रूव कर देंगे बाय कंटिन्यू वो बाय ये, क्योंकि A अब क्या है, f is continuous at every point, so C पे भी कंटिन्यूस होगा। अब An कन्वर्ज कर रहा है C को, तो f of An will converge to FC, right? अब क्योंकि f of an क्या है, f of an is coming out to be positive, हमने an जो है हमेशा पॉजिटिव वाले लिए हुए हैं, अब bn हमेशा नेगेटिव वाले लिए हुए हैं। so f of an is greater than equal to 0 for all n, so this implies fc is greater than equal to 0, right? और यहाँ से हमारे पास bn जो कन्वर्ज कर रही है c को, तो इससे क्या आ जाएगा कि f of bn is less than equal to 0 for all n, right? और इससे हमारे पास fc less than equal to 0 हो जाएगा। so यहाँ इन दोनों को करोगे तो fc will come out to be equal to 0। so this is the main idea behind the proof। so this is called bisection method। कि bisection method means कि हर एक step पे we are bisecting our interval, we are taking the half of the interval। और interval इस तरह से choose करना है कि एक side positive रहे, एक side negative रहे। basically left hand side positive होना चाहिए, right hand side negative होना चाहिए, हमें इस तरह से interval को choose करना है।
ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है कि क्या लाइन ऑफ प्रूफ होने वाला है, क्योंकि लिखने में ये थोड़ा लंबा जाएगा, बट मेन आइडिया ये है कि एवरी स्टेप वी आर डिक्रीजिंग द लेंथ, और ए आई इस तरह से चूज कर रहे हैं कि हमेशा एफ ऑफ ए आई पॉजिटिव है, और ए बी आई इस तरह से चूज कर रहे हैं कि हमेशा एफ ऑफ बी आई नेगेटिव है, और ये जो है हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इससे हमारे पास आ जाएगा कि बी एन और सी एन, जो बी एन और ए एन जो है वो सेम ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं सी पे, और फिर उससे हमारे पास एफ सी जो ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से वी विल गेट दैट एफ सी इज 0। ठीक है, is it fine? So this is your bisection method. This is called bisection method. ये this method is important because you can write the program also. कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हो इससे, इसका यूज करके, क्योंकि हर एक स्टेप पे हाफ कर रहे हो, so you can वो write the program also. और ये तुम न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी पढ़ोगे. You will find this is used to find roots of any given function. ओके, सो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर कोई भी दिया है तो इसके यूज से यू कैन फाइंड द रूट ऑफ दैट फंक्शन, और यही स्टेप्स होते हैं पूरे उसमें. हर एक स्टेप में यू डिवाइड द इंटरवल इनटू 2 पार्ट्स, और वो वाला इंटरवल लेते हो जिसमें एक लेफ्ट साइड जो है वो साइन चेंज हो रहा हो बेसिकली एंड पॉइंट्स पे. फाइन, सो लेट अस राइट इट्स प्रूफ नाउ. लेट अस कम टू इट्स प्रूफ. सो वी आर गिवन 2 कंडीशंस, राइट? या तो हमें दिया हुआ है कि fa इज लेस देन 0 लेस देन fp, या fa इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन fb. सो इन दोनों में से किसी भी एक के लिए प्रूव कर देंगे, दूसरा कैन बी प्रूव्ड ऑन द सिमिलर लाइन. सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, without loss of generality, assume that, क्योंकि क्या करोगे, दूसरा कैसे कर सकते हो कि अगर f के इसके लिए प्रूव कर लिया तो हम h को माइनस एफ ले लेंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो h को हम माइनस एफ ले लेंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर h का 0 आ जाएगा, और जो h का 0 होगा वो f का भी 0 होगा. सो इसलिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन अज्यूम दैट fa is less than 0 less than fp. if needed we can work with माइनस एफ. ठीक है ना, इसलिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि माइनस एफ से काम कर सकते हैं फिर हम. सो सेम, इसलिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी आर अज्यूमिंग दैट fa इज नेगेटिव एंड fb इज पॉजिटिव. फाइन, is it fine? So Yes, now sir. we will generate. अब हमें बस वही सीक्वेंस जनरेट करना है. सो फर्स्ट इज लेट i1 इक्वल टू a1 b1 where a1 is equal to a, b1 is equal to b. so फर्स्ट स्टेप में तो हमने a1 और b1 नाम दे दिए. a1 is equal to a, b1 is equal to b, and a1 वो b1 minus a1 is equal to b1 minus a1 is equal to b minus a. ठीक है, so ये आ गया हमारे पास. ठीक है, now take the midpoint. let p1 equal to a1 plus b1 by 2, that is midpoint of the interval ab, right? a1 b1 i1 का midpoint, yeah, midpoint of the interval i1. ठीक है, so we have taken the midpoint of the interval i1, right? a1 plus b1 by 2. ठीक है, so अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? p1 के साइन क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी 0 आल्सो. देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. बाय लॉ, कौन सा होता है ये लॉ? इसको कौन सा लॉ कहते हैं कि देयर आर 3 Trichotomy. पॉसिबिलिटीज फॉर दिस? यस, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी. सो इफ f of p1 is equal to 0, देन हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें तो एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना था इंटरवल में such that at that point the value of the function is 0, और हमें शुरू में ही मिल गया वो पॉइंट. ठीक है, so then there is nothing to prove and we are done in this case, right? And we are through in this case. ठीक है, क्योंकि
हमें एक पॉइंट फाइंड करना था एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, और वो तो हमें इनिशियली मिल गया, सो देयर इज नथिंग टू प्रूव इन दिस केस, ठीक है। सो और अगर इफ f of p1 is negative, then क्या करेंगे उस केस में हम? अगर f of p1 नेगेटिव है, अभी बताया मैंने, तो A1 और P1 का वो ले लेंगे इंटरवल, तो a1 क्या लेंगे? पॉजिटिव है हमेशा A1। देख, ये साइन रखना है हमें हमेशा। यहाँ पे ये p1 इज नेगेटिव, सो क्या आ रहा है? देखो ये है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज योर a1, this is your b1, and this is your p1, and this is negative, this is positive, and this is negative। तो क्या होगा, क्या लेना चाहिए हमें? p1 a2 क्या लेना चाहिए? तो P1 and P1 plus P1 by 2. Let a2 equal to p1 and b2 equal to b1, ठीक है। सो ये वाला इंटरवल कंसीडर करेंगे क्योंकि साइन इसमें चेंज हो रहा है ना। b2 को b1 ही रखेंगे, सो दिस इज अवर b2 एंड दिस इज अवर a2, ठीक है। Is it fine? And if f of p1 is greater than 0, then let, उस केस में क्या होगा हमारे पास? a2 will be equal to a1 and b2 will be equal to p1। उस केस में ये वाला केस आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। So this is your a1, this is your p1 and this is your b1। अब यहाँ पे this is negative, this is positive, this is positive, so इस इंटरवल में साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, so इसलिए हमारा a2 will be this and b2 will be this, ठीक है। so p1 को हम b2 ले लेंगे और ये a2 ले लेंगे। so दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये वाला जिसमें भी साइन चेंज हो रहा है वो लेना है हर एक स्टेप में, ठीक है। यस, और जिस तरह से हमने yes, चूज करा है, then in either case I2 is equal to A2 B2 where f of A2 is less than 0 less than f of B2, right? ये इस तरह से है, and B2 minus A2 is equal to 1 by 2 times B minus A, half of this interval, right? B1 minus A1 या B minus A, ठीक है। B2 minus A2 यही आ रहा है, half of B minus A। yes, सर ये कैसे Yes. मालूम चला कि A1 नेगेटिव होगा? A1 तो दिया ही हुआ है ना नेगेटिव, हमने लिया ही है। F के f of लिए A less A1 is तो our A, सर फंक्शन की वैल्यू सर नेगेटिव है सर। ये गिवन है हमें, this is given to us, we have assumed that fa is negative and this is less than fb, ठीक है। so fa is negative, fb is positive, so a1 को a लिया हुआ है, so f of a1 is negative, b1 को हमने b लिया है, so f of b1 is positive, ठीक है। हमेशा में हमारा एम क्या होगा कि ai जो है वो नेगेटिव रहे और bi जो है पॉजिटिव रहे, हमें बस ये एम रखना है, ठीक है। इस तरह से चूज करते रहना है हर एक स्टेप में, फाइन। Is it clear? Shall we proceed further? Yes, sir. The same step करना है again. Let P2 be the midpoint of this interval I2. ठीक है, सेम ये पूरा ही कॉपी कर देते हैं, ये चलो लिख ही देते हैं नीचे। Let P2 equal to A2 plus B2 by 2, that is midpoint of I2, ठीक है। So again we have three possibilities. If f of P2 equal to 0, then C equal to P2 is the required point, ठीक है, क्योंकि हमें एक C फाइंड करना था, and we are done, ठीक है।
सो अब हम, और अगर इफ f of p2 is नेगेटिव, पहले नेगेटिव लिया था ना हमने इसमें, यहाँ पे if f of p2 is negative, then let a3 equal to p2 and b3 equal to, और b3 equal to b2. यही सेम वही चीज हो गई यहाँ पे अगेन. ओके, because this is now your a2, this is your b2, this is your p2, right? so अब क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, so you will take this as a2, this is your a2 or a3, this is your b3. ठीक है, and if f2 is positive, then let a3 equal to a2 and b3 equal to p2. ठीक है, so same वही again इस केस में ये हो गया, this is yes, so this is your a2, this is your p2, this is your b2. so because this is negative positive negative, so यहाँ पे sorry positive, so यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, so this you will take as a3 and this you will take as b3. fine, so now you are considering this interval. ठीक है, so हर एक स्टेप में हमें वो वाला इंटरवल कंसीडर करना है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हो, साइन चेंज हो रहा है एंड पॉइंट्स पे. बेसिकली हमें ai's को नेगेटिव रखना है, bi's को पॉजिटिव रखना है, इस तरह से चूज करना है हर एक स्टेप में. ठीक है, फाइन. so then in either case I3 is equal to a2 a3 b3 where f of a3 is less than 0 less than f of b3 and ठीक है, and b3 minus a3 is equal to क्या हो जाएगा, this will be half of b2 minus a2 which is equal to 1 by 2 square b minus a. ठीक है, फाइन. yes, is it clear? Yes, sir. so अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, अभी इस तरह से हम इंडक्टिवली कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऐसा होगा कि आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ये हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? टर्मिनेट जहाँ पे, कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे अगर हमें ऐसा कोई मिड पॉइंट मिल जाए such that at that point the value is 0, right? so continuing like this, continuing inductively so we continue the above, so we continue the above bisection process inductively. okay, so if the process terminates say after 5k number of steps, k number of steps, so then we get intervals I1 I2 IK. ठीक है, where
I is equal to AI bi and f of AI is less than 0 less than f of bi. ठीक है, for all I equal to 1 to k and pk is equal to ak plus bk by 2 such that f of pk is equal to 0. ठीक है, ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है प्रोसेस, जहाँ पे 0 आ रहा है. If the process terminates after k number of steps, that then we get intervals I1, I2, Ik where this is all these conditions are satisfied, right? And f of pk is equal to 0. So c equal to pk is the required point, right? If the process does not terminate, ठीक है, अगर ये प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या होगा, then we get a sequence of intervals I1 या IN लिख देते हैं, sequence of intervals, sequence IN of intervals, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं हुआ, सो हमारे पास पूरी सीक्वेंस बन जाएगी I1 I2 IN इनफाइनाइट तक. ठीक है, सो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स such that IN is equal to AN BN, right, where f of AN is less than 0 less than f of BN for all n belonging to n, और ठीक है, and BN minus AN क्या होगा, 1 by 2n minus 1 times B minus A, क्योंकि हर एक स्टेप में हाफ हो रहा है ना. सो यहाँ पे 3 पे 2 था और 2 पे 1 था, सो n पे n minus 1 हो जाएगा, राइट? यस सर. ठीक है, ये समझ में आ गया सीक्वेंस कैसे आ गई हमारे पास, क्योंकि अगर ये अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में टर्मिनेट हो गया तो पीके हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जहाँ पे वैल्यू 0 होगी. अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल्स आ जाएंगे, हर एक स्टेप पे एक इंटरवल आते चला जाएगा. सो वी विल बी एबल टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स सच दैट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, इज इट फाइन, यहाँ तक क्लियर है? नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या थी? किसी भी इंटरवल में Sense. अगर हम और इंटरवल लेते जाएं तो उसमें एक का भी वो फाई नहीं होगा उसका सेट. इंटरसेक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल्स हैं तो इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा. ओपन में तो फाई हो जाता है, क्लोज्ड में फाई नहीं होगा. IN is contained in IN for all n, right? Also length of IN, limit n tends to infinity, length of IN which is equal to limit n tends to infinity 1 by 2n minus 1 B minus A is equal to 0. अगर हमारे पास ऐसे इंटरवल होते हैं जो नेस्टेड होते हैं और साथ में उनका अगर लेंथ जो है वो 0 को जा रहा होता है, तो देन बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या होता है? So then, so IN is a sequence of closed and bounded, is a nested sequence of closed and bounded intervals. So IN is a nested, या सीधे बस यहाँ से लिख ही देते हैं. So then by nested interval property, by nested interval property क्या होगा? Yes. There is exactly one point, right? By nested interval property, intersection n belonging to IN is equal to C for some C belonging to R. ठीक है, उसके अंदर एक ही सिंगलटन सेट, अगर लेंथ अगर खाली ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, कंटेन्ड है, तो
वो नॉन एम्प्टी होता है, लेकिन अगर साथ में लेंथ अगर 0 पे जा रही है तो उसमें एक ही पॉइंट आता है फॉर सम सी बिलोंगिंग टू आर. ठीक है, इज इट फाइन? ओके सर. ठीक है, so this is your nested interval property. So there exists this C such that this is there. Okay, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि C is C belongs now, so that is C belongs to In for all n belonging to n, right? C belongs to In for all n belonging to n. So this implies, क्योंकि In क्या है, an bn है, so this implies an is less than equal to C less than equal to bn for all n belonging to n. Yes. Yes sir. Also an is less than equal to C less than equal to bn. An is a monotonic sequence. An is monotonic. It is bounded above by C, right? बल्कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट है, bn भी कन्वर्जेंट है, और साथ में bn माइनस an जो है that is also, since an and bn are monotonic sequences, right? They are monotonic sequences, monotonic bounded sequences, क्योंकि they are in closed interval ab, right? Bounded sequences. So by monotone convergence theorem क्या हो जाएंगे, both an and bn are convergent, right? क्योंकि हमारे पास क्या है, an is less than equal to an plus 1 for all n, या तो बराबर है या छोटा है. ठीक है ना, हम इसी तरह से चूज कर रहे हैं एट एवरी स्टेप, या तो हम इसी को ले रहे हैं या नेक्स्ट इसको ले रहे हैं. सो एट एवरी स्टेप आइदर an is equal to an plus 1 or it is greater than an, right? So इसलिए ये this is monotonic increasing and this is monotonic decreasing, so both are monotonic sequences. So strictly monotone नहीं है लेकिन they are monotonic, right? So a and bn are convergent. Yes. Now as an is less than equal to C less than equal to bn for all n belonging to n, ये convergent भी है, and limit n tends to infinity an minus bn is equal to 0. So what does this imply? Yes, this is 0, right? Because this is nothing but, sorry, bn minus an low. So bn minus an, which is equal to limit n tends to infinity 1 by 2n minus 1 b minus a 0. So ये 0 पे जा रहा है bn minus an is converging to some limit, bn is converging to some limit, तो ये क्या होगा? The limit of an और limit of bn बराबर हो जाएंगे. Yes, it implies an converges to C and bn converges to C. You can prove it also, right? इसको prove भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्या, इसको एक बार क्या करोगे, एक बार माइनस an से माइनस कर दोगे, an minus an is less than equal to C minus an is less than equal to bn minus an. So this is 0. So यहाँ से क्या पता चल रहा है कि an minus C limit n tends to infinity is 0, क्योंकि ये 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है स्क्वीज थ्योरम से. So your limit an is C. Similarly जब bn माइनस करोगे तो bn की लिमिट आ जाएगी. So इस तरह से you can prove it also, right? तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख ही रहा है कि ये जाएगा, क्योंकि these two are इन दोनों का डिस्टेंस 0 हो रहा है और बीच में C है, तो इट हैज टू बी इक्वल टू, दोनों का लिमिट C होना चाहिए. ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर. ये मतलब अगर करना हो तो आराम से यू कैन इजीली प्रूव इट. इसी में एक बार माइनस an कर दो, एक बार माइनस bn कर दो, सो देन दोनों आ जाएंगे. सो an is converging to C, bn is converging to C. So since f is continuous at C, since C belongs to I and f is continuous on I, so this implies
So f is continuous at C, then by sequential criteria for continuity, f of an converges to f of C and f of bn converges to f of C, right? Yes. Yes, sir. Now f of an is less than equal to 0, right? And this is less than equal to f of bn for all n belonging to n. ठीक है, इसी तरह से हमने चूज करा ना कि ai is always negative and bi is always positive, या इसको स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो. Yes. Yes, sir. So लिमिट, जब लिमिट लेते हैं तो इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाती है, राइट? Yes. So this implies fc is less than equal to 0 and this is less than equal to fc. So this implies fc is equal to 0. ठीक है. Yes, sir. Yes. So hence f has hence the theorem. बस यही करना था हमें प्रूफ. So या तो हमारा अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में टर्मिनेट हो जाता है ये, तो यहीं पे हमें c मिल जाता. अगर नहीं होता है तो वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल सीक्वेंसेस in, और फिर नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी से वहां पे एक पॉइंट हमें c मिलता, वो हम दिखा देते कि दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, वहां पे 0 आएगा. इज इट फाइन? सर वो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी नहीं समझ में आया, वो लिमिट एल आई एन कैसे आए? नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी ये होती है, ये थ्योरम है जो हमने पहले आई थिंक डिस्कस करी थी इन आवर इनिशियल क्लासेस. जैसे कि इंटरसेक्शन करते जाएंगे तो वो कितना भी करें एक एलिमेंट एटलीस्ट आएगा. नहीं, एटलीस्ट अगर in is a sequence of closed and bounded intervals such that in is contained in in plus 1 is contained in in, then intersection n belonging to n, in is non-empty. ये तो ये हो गया. इसका एक और प्रॉपर्टी होती है कि if length of limit of in this converges to 0, this is equal to 0. ठीक है, अगर इसकी लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, then intersection n belonging to n in is a singleton set. ठीक है, so this is a singleton set. This is your nested interval property. Further if, ठीक है, जो ये तो होता है कि नॉन एम्प्टी है, अगर बाउंडेड क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ले रहे हो तो नॉन एम्प्टी आएगा. जैसे अगर हम ये वाले इंटरवल्स ले लें -1 प्लस -1, अगर if we take this interval -1 by n 1 plus 1 by n, तो अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे, अगर in इक्वल टू ये लिया तो हमारा इंटरसेक्शन n belonging to n in क्या आएगा? -1 to 1. -1 to 1, क्योंकि इसकी लेंथ कभी 0 नहीं जा रही, इसकी लेंथ हमेशा 1 रह रही है और 2 रह रही है, राइट? लेकिन if we take in इक्वल टू दिस -1 by n to 1 by n, so इसके हर एक स्टेप में लेंथ क्या हो रही है? It is getting decreased, it is going to 0, right? So इसमें अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? It will come out to be singleton set 0. ठीक है, so these are two different property. ये इसमें ये additional है, nested interval property ये है. If in is a sequence of closed and bounded intervals such that in plus 1 is contained in in, so then this intersection in is non-empty, जैसे इस केस में है. तो यहाँ पे लेंथ की बात नहीं है, लेकिन अगर लेंथ उसकी जो लेंथ ऑफ in है that is converging to 0 when you take n to infinity,
देन उसमें जो है एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, ये दिस इज देयर इन योर, आई थिंक यू मस्ट हैव डन इट इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, प्रीवियस सेमेस्टर्स, उसमें करा होगा। बाकी इजीली प्रूव कर सकते हो तुम कि इसमें एक ही पॉइंट आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और सर सीक्वेंस an मोनोटोन कैसे हुआ सर, वो नहीं समझ में आया। वो तो मोनोटोन हम चूज इस तरह से कर रहे हैं ना, हर एक स्टेप में देखो हमारा an क्या है, either we are taking an equal to an or an equal to pn for each n is, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, an is either an minus 1 और an is pn minus 1, राइट। या तो वही था, देखो an जो है हमारा, अगर नंबर लाइन ये है, दिस इज अवर नंबर लाइन, दिस इज अवर an minus 1, this is our bn minus 1, this is our for negative, this was positive, this was our p1 pn minus 1, right। सो या तो हमारा, अगर और दूसरा केस, इसी को एक और दो केस बना लेते हैं, these are two cases, ये केस 1 है, केस 1, दिस इज केस 2। तो इसमें अगर ये अगर पॉजिटिव होता तो हमारा an क्या होता, सो दिस, ये हमारा an होता, ये हमारा bn होता। सो इस केस में इक्वालिटी, इस केस में इक्वालिटी, अगर ये हमारा नेगेटिव होता तो an हमारा ये हो जाता, bn हमारा ये हो जाता। सो इस केस में वी हैव दिस, ठीक है। सो ये केस आ गया। सो इन आइदर केस an is greater than equal to an minus 1, right? This is greater than an minus 1. So this implies an is a monotonic increasing sequence. Similarly, we can show bn is monotonic decreasing sequence, क्योंकि ये हमारा, इस केस में ये bn है, इस केस में ये bn है, right? यस सर। ठीक, क्लियर। तो इसलिए मतलब ये सिंपल है, Yes, sir. इसी तरह से चूज कर रहे हैं हम। सो an is monotonic increasing और bn is monotonic decreasing। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर जब दोनों पॉजिटिव आता है, सेम साइन का आता है, तो उसमें क्यों नहीं लेते हैं मिड पॉइंट, क्योंकि उसमें भी तो पॉसिबिलिटी है सर। देखो पॉसिबिलिटी तो है, बट श्योरिटी नहीं है ना उसमें। ओके। देखो जैसे अभी हमने, जो मैंने शुरू में ग्राफ डिस्कस करा था, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, सो इसमें देयर आर सो मेनी जीरोस। सो जैसे इसमें अगर हमारा ये होता भी, ये p1 है हमारा जैसे, तो इसमें हम कोई भी a1 कोई भी a2 लेते चलता, क्योंकि इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे p2 है, ठीक है, दिस इज योर p1, ये a1, ये b1, so this is a p1। if you take this, अगर ये, so यहाँ पे this is negative, this is positive, ठीक है। so अगर ये, so this, ये वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, this is coming out to be negative। so if you take this interval, same sign का interval, तो यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा फिर तुम्हें कभी, फिर कभी साइन चेंज होगा ही नहीं, हमेशा ही नेगेटिव रह जाएगा। और फिर हम जो यहाँ पे ये, इसलिए हम ये ले रहे हैं, और साथ में हमें ये भी तो पता चल रहा है ना, देखो हमने प्रूफ में क्या यूज करा है, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती ना हमारी, जो ये FAN वाली थी, दिस कंडीशन, ये वाली कंडीशन फिर नहीं इंटैक्ट रह पाती, और ये नहीं रह पाती तो हम ये नहीं कर पाते, ठीक है। उसमें भी C आता, इंटरसेक्शन IN जो है वो C आता, लेकिन वो C कुछ, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती, तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती, तो ये नहीं होती, ठीक है। वहां पे भी AN मोनोटोनिक आता, BN मोनोटोनिक आता, और वहां पे भी कन्वर्ज करता वो C पे। लेकिन अब क्योंकि इस C के बारे में हम इससे कंक्लूड कर पा रहे हैं, इस कंडीशन से, और ये कंडीशन होल्ड ही नहीं करती अगर हम सेम साइन लेते। सो प्रूफ से ही पता चल रहा है, और बाकी देखने से भी, एग्जाम्पल देखने से भी पता चल जाता है
बिकॉज यहाँ पे अगर P2 है तो ये कोई भी साइन लिया होता तो चल जाता, ठीक है, बट इधर जो है इधर काम नहीं करता, ठीक है, इज इट फाइन? सो ये लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये इसलिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, इसको नाम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इसलिए क्योंकि इसके बीच में वैल्यू 0 है और 0 किसी पॉइंट पे अटेन होता है। सो एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 है, सो जो भी बीच में आएगी वैल्यू वो अटेन होगी, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इज इट फाइन? चलो लेट अस एंड दिस क्लास, ऑलरेडी वी आर अबाउट टाइम, दूसरी भी क्लास है मेरी। और अच्छा एक क्वेश्चन कर लेना जो सिमिलर इसका इसी का एक और प्रूफ है, देयर इज अ डिफरेंट प्रूफ फॉर दैट, और ये कौन से थ्योरम है इसको ट्राई करना, दिस इज अ सिमिलर, ये सेम लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम है ये, एंड इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव प्रूफ फॉर दिस थ्योरम जो अभी हमने करा है, इसका ट्राई करना इफ यू आर एबल टू डू, अदरवाइज हम करेंगे ही बाद में खुद से, बट इट्स गुड इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। So this is a function f is continuous, again we are taking fa to be less than 0, fp to be positive, w is all those x such that fx is less than 0, and we take w to be supremum of w, और फिर क्लेम करना है fw is equal to 0. So this gives another proof for that कि यहाँ पे जो हमने स्टार्ट करा था तो हम इस w से स्टार्ट कर सकते थे, we could have chosen this w और इसका सुप्रीमम लेके उस पॉइंट पे हम जीरोस दिखा सकते थे. So this is another proof for that, another way to prove location of roots theorem. ठीक है, बट जो अब ये वाला बल्कि सिंपलर प्रूफ है, दिस विल कम आउट टू बी अ सिंपलर प्रूफ देन दिस, बट दिस प्रूफ हैज इट्स इंपॉर्टेंस क्योंकि इससे तुम एल्गोरिथम बना सकते हो, इससे यू कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि ये हर एक तरह से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, सो यू कैन जनरेट अ एल्गोरिथम फॉर दिस, यू कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, इसलिए बाइसेक्शन मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट, अदरवाइज ये इससे भी प्रूव हो जाता है और ये बहुत सिंपल प्रूफ आएगा, देखना अगर इसको ट्राई करना यू कैन इजीली प्रूव इट, सो इट विल कम आउट टू बी वेरी सिंपल प्रूफ. इसमें सुप्रीमम की प्रॉपर्टी से एक सीक्वेंस जनरेट कर लेना, ठीक है, w क्योंकि सुप्रीमम लिया है ना, सो w माइनस 1/n इज नॉट सुप्रीमम, सो इससे बड़ा एक पॉइंट मिलता जाएगा हर एक स्टेप में तुम्हें, ठीक है, हर एक स्टेप में यू विल गेट एन xn which is this, which satisfy this property, right? So f of xn is come out to be this, so इससे तुम सीक्वेंस जनरेट करके you can prove that f of w will come out to be 0. So try this, इसको करना, ठीक है, so Breum property से बहुत easy है ये वाला. चलो I am ending this class now, okay, so bye everyone, have a good day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, Online Learning, to stay updated and share with your friends. Happy learning through online learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.